I make close to, if not more than $10,000 every single month, and I run a podcast production agency, and I teach people how to make money online, and I've got a community jahan par you can go and you can learn, and I've got tons of testimonials. Now that you know about me, I'm going to start the video. So in this video I'm going to be sharing the exact diet जो मैं खुद यूज़ करता हूँ ताकि I'm able to work 12 से 14 घंटे every single day without feeling dull. Because understand, so many of you guys have this problem कि जहाँ पर आप सुबह के टाइम उठते हो you're so fresh, and then जैसी शाम होती है you're like, मतलब आपके दिमाग पे एक अजीब सी एक fogginess आती है, and you feel dull and you just don't feel like doing anything, and because of that you just crash, and then you're like मैं कल कर लूँगा. Whereas when you wake up you have so much energy, लेकिन you just cannot do hard things, you cannot do the boring stuff, you cannot do the mundane stuff. You're like यार, you know you want to do it, you have that urge in you, you want to do it, but you cannot do it. That completely, if not like 99%, has to do with your diet. And I'm going to tell exactly the structure that I follow to stay the most productive, ताकि I'm able to just push myself रात को 10 बजे भी, शाम को 5 बजे भी, and सुबह 8 बजे भी. So it's very important that you understand that diet is literally everything. So यहाँ पर I'm going to try to make sure कि I'm in frame. So I'm going to share the exact diet that I follow daily. ऊपर यही लिखा हुआ है like the diet that I follow daily. And again, मैं कोई doctor नहीं हूँ, nothing like that. So it's a huge like big disclaimer. This is what I personally use and this is what works for me. I feel like a superhuman with this diet, and I'm hoping that you guys also feel that. So before I go into the details, पहले मैं आपको बताता हूँ कि what does my average day look like. So I wake up usually around the fact, like sometimes I wake up late, like if I sleep let's say 4-5 बजे सुबह के time, if I'm waking up and if I have something to get done, so I'll sleep like 4-5 बजे, but I do complete my 8 hours of sleep regardless of whenever I sleep. So the first thing and the most important thing is that you need to complete your 8 hours of sleep. Sleep is very crucial. Doesn't matter when you wake up, doesn't matter when you sleep. It matters to an extent, but it's not the end of the world अगर आप लेट सो रहे हो. What matters is कि आप अपने 8 घंटे पूरे करो. अगर ये 8 घंटे नहीं पूरे हो रहे तो you are going to be sluggish and lethargic throughout the day. When you wake up, उसके बाद the second thing that you have to do is that you cannot eat. आपने कुछ नहीं खाना. You cannot eat for at least 6 hours after you wake up. So no eating after 6 hours. And उसकी एक वजह, but वो वजह मैं बाद बताता हूँ. But पहले like I don't eat for at least 6 hours. So if I'm waking up let's say 9 AM तो मैं 3 बजे तक खाना नहीं खाऊंगा. अगर मैं दिन को 12 बजे उठ रहा हूँ तो मैं रात 6 बजे तक कुछ भी नहीं खाऊंगा. And when I do eat, it's proteins, fiber and थोड़े बहुत carbs, but absolutely no carbs. थोड़े बहुत कार्ब्स चले जाते हैं. आप ऑब्वियसली देसी डाइट के तो यू कैन नॉट जस्ट फिल्टर आउट कार्ब्स, मतलब बिल्कुल जीरो कार्ब्स भी अच्छे नहीं होते. बट योर मेन मील शुड हैव द लीस्ट अमाउंट ऑफ कार्ब्स, द लीस्ट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. वो मैं बताता हूँ क्यों, बट दिस इज एक्जैक्टली व्हाट आई डू. सो हाई इन प्रोटीन, हाई इन फाइबर, हाई लाइक लो इन फैट, पर थोड़ा बहुत फैट भी होता है, बट नो कार्ब्स. बट कार्ब्स भी आ ही जाते हैं. बट एसेंशियली द गोल इज टू हैव द हाईएस्ट प्रोटीन एंड द मोस्ट फाइबर. दैट्स व्हाट आई डू. उसके बाद आई ईट इन ए 6 hour window. If I wake up at let's say 12 बजे, so I'm gonna have my first meal at 6 PM. Then I'm gonna have my last meal at 12 PM. उसके बाद I'm not gonna have anything for the next 18 hours at least. This is very important. This is called intermittent fasting. अगर आपको नहीं पता, many people do this to lose weight, but this is people don't understand the fact कि when you do intermittent fasting, what you're essentially doing is आपकी body जिस तरह evolve हुई है ना from your ancestors. So back in the day, like let's say 1000-2000 साल पहले इंसान, when we used to wake up, we were hungry, we wanted food. We used to go out in tribes of people ताकि हम जाके खाने को hunt करें. We used to sit there completely focused for hours and hours on end ताकि we were able to hunt down our prey. यार किसी टाइम वहाँ से हिरन आ सकता है, कोई भी चीज़ आ सकती है, इसको हम hunt down करें. So we have to sit still and you have to focus. Nowadays people are like आप 25 मिनट focus करो, 30 मिनट focus करो, फिर you have to walk. That might work for some people, but that is not how we have evolved ancestrally. अगर आप देखो तो we have evolved in a way कि जहाँ पर we used to wake up, we used to work extremely hard, essentially hunt extremely hard. Then we used to hunt down a big prey. We used to skin it, then we used to take it back, we used to fry it, and then we used to have our big feast at the end of the day जहाँ पर the whole tribe gathered and we ate, and then after that we hung out with our friends and then we slept. That is how humans have evolved.
हमने क्या कर दिया कि व्हाट वी डूइंग इज 3 सुबह उठो नाश्ता करो, दिन को ये खाओ, 4 को ये खाओ. व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड इज दैट कि हैविंग अ डाइट लाइक दैट इट्स गोना मेक यू एक्सट्रीमली स्लगिश. आपका ब्रेन फॉग जाएगा ही नहीं, बिकॉज सुबह भी आप रोटी पराठे खा रहे हो, दिन को भी आप रोटियां खा रहे हो, शाम को आप चाय या कुछ पी रहे हो, रात को भी आप रोटियां खा रहे हो. इतने ज़्यादा कार्ब्स अंदर ले रहे हो, प्रोटीन ले ही नहीं रहे हो, आपकी बॉडी इंसुलिन रिलीज ही करती रहेगी. व्हेन आर यू गोना फील बेटर? सो दिस इज हाउ आई गो अबाउट. ये होता है मेरा पूरा दिन. दिस इज द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर दैट आई फॉलो. अब हम गोना गो टू द डिटेल्स एज टू व्हाई आई डू दैट. पहला तो मैंने आपको बता दिया कि 8 hours of sleep very necessary because then you're going to be very fresh when you wake up. Don't eat for at least 6 hours. I'm sure you guys must have noticed कि when you wake up you're very focused. You're very focused. आपका focus बहुत ज़्यादा होता है. You're very sharp. आप alert होते हो. As soon as you have food you feel sluggish. Because the way we have evolved, food meant कि now the prey is down. There's no need to be in survival mode anymore. Now you can relax. हम सुबह उठते साथ ये करते हैं. So we relax all the day पहली बार. सेकेंडली हमारे खाने के अंदर जो हमारी देसी डाइट है इसके अंदर कार्ब्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं. व्हाट हैपन्स इज कि व्हेन यू ईट प्रोटीन, फाइबर वगैरह आप लेते हो, फैट थोड़ा बहुत ले लो, आपकी बॉडी इंसुलिन नहीं रिलीज़ करती. और आपकी बॉडी जब भी रिलीज़ करती है इंसुलिन, यू आर गोना फील स्लो बिकॉज इंसुलिन को यूज़ करके आपकी बॉडी ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट्स इन योर बॉडी. सो आप चावल खा लो ज़्यादा, आप रोटी खा लो बहुत ज़्यादा, आप सालन खा लो बहुत ज़्यादा, आप कुछ मीठा खा लो बहुत ज़्यादा, तो आपको वो पोस्ट मीठा या पोस्ट उसके आपको अफ्तारी के बाद नहीं होता. अफ्तारी के बाद लोग होते हैं पड़ जाते हैं अफ्तारी करने के बाद. वाई इतने ज़्यादा कार्ब्स देते हैं रोल समोसे पकौड़ों के फॉर्म में कि उनकी बॉडी फिर उन कार्ब्स को ब्रेक डाउन करती है. उनको लगता है उनको नींद आई है, हालांकि उनकी बॉडी की सारी एनर्जी वो जा रही होती है टू ब्रेक डाउन दोज कार्बोहाइड्रेट्स. इंसुलिन रिलीज़ हो रही होती है. बिकॉज ऑफ दैट दे आर नॉट प्रोडक्टिव. आप अगले रमज़ान में इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सारों को सेहत दे और ज़िंदगी दे, आप अगले रमज़ान में अफ्तारी के टाइम प्रोटीन खाओ. एंड प्रोटीन के मैं आपको बता दूँ सोर्सेज दैट आई पर्सनली यूज़. बट आप प्रोटीन लो, आप फ्रेश रहोगे, आप खाना खा लोगे, आपका पेट भर जाएगा, यू स्टिल कर बी एक्सट्रीमली फ्रेश, कोई स्लगिशनेस नहीं होगी. दैट इज़ हाउ इंपॉर्टेंट योर डाइट इज़. यू कैन लिटरली बायोहैक योरसेल्फ एंड फोकस फॉर 8, 9, 10, 12 hours. अगर आप सिर्फ अपनी डाइट में से ये कार्ब्स एलिमिनेट कर दो. डोंट टेक कार्ब्स. कार्ब्स आर लिटरली योर एनिमी. कार्ब्स ले लिए ख़त्म. इट्स नॉट लाइक आई डोंट टेक कार्ब्स, बट उसका एक तरीका होता है लेने का. So no carbs because your body takes at least 5 to 6 hours to break down those carbohydrates. So if you take those carbohydrates तो अगले 5-6 घंटे के लिए भूल जाओ कि आप फ्रेश हो गए. आपकी बॉडी की सारी एनर्जी उधर जा रही होगी. आप काम में कुछ भी करोगे, you're gonna be extremely tired. So पहले 6 घंटे में just get all your main work done. Just work extremely hard. जो कुछ भी है, आपको भूख लग रही है ना, that's not hunger. You are an addict. The majority of our population is now an addict for food. उनको addiction होगी खाने की, उनको भूख नहीं होती. It's an addiction. They want food because the body is craving it. It's not that उनके अंदर energy नहीं है. If you're fat, if you have so much fat around your body, तो you don't need more food. Your body can eat that fat because आप एक intermittent fasting की state में, because now your body is metabolizing और वो आपका fat खा रही है. So when you're doing intermittent fasting, तो रात 12 से लेके अगले दिन जब तक आप खाना नहीं खाते हो ना, आपकी बॉडी आपका फैट खाती रहेगी, वो फैट खाती रहेगी. एंड देन इफ़ यू गोना ब्रेक योर इंटरमिटेंट फास्ट प्रोटीन के साथ, अ फूड विद हाई इन प्रोटीन, आपकी बॉडी इंसुलिन नहीं करेगी रिलीज. उसके साथ साथ आपको ग़ज़ा भी मिल जाएगी. प्रोटीन इट्स गोना गो स्ट्रेट इनटू योर बॉडी एंड इट्स गोना ब्रेक डाउन एंड इट्स गोना गो इन योर मसल्स एंड इट्स गोना कीप यू एक्सट्रीमली शार्प. इंसुलिन भी रिलीज़ नहीं होगी और जो आपका फैट खाने का प्रोसेस है वो भी चलता रहता है, वो डिस्टर्ब नहीं होता. एज सून एज योर बॉडी रिलीजेज इंसुलिन, उसके बाद से आपकी बॉडी का जो फैट खाने का प्रोसेस है वो रुक जाता है. Then your body takes energy from carbohydrates. वो कार्ब से लेती है एनर्जी because that's why it's breaking it down. That's why your body releases insulin because वो कार्ब्स को तोड़ रही है ताकि वो उसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करे और उसको यूज़ करे. Carbs are the fastest way for your body to extract energy from. So वो उसको उसी टाइम तोड़ती है और वो उससे लेती है एनर्जी, लेकिन उस सारे प्रोसेस में 6 घंटे लगते हैं. So now you tell me, अगर आपने बहुत ज़्यादा काम करना है, आपको पता है अगर आपने कार्ब्स ले ली, you are gonna feel lethargic, आप लोगे, you're not gonna take it because you don't want your focus to be disturbed. So you don't take any carbs, especially पहले 6 घंटे के अंदर. आपने अगर 6 घंटे में कार्ब्स ले ली, you're done. कोशिश करो इससे भी ज़्यादा लंबा करो. लाइक आई हैव डन 24 आवर फास्ट एज वेल, कि सिर्फ पानी 24 घंटे के लिए. उसके अलावा दरमियान में एक मील, 1 मील अ डे, जहाँ विच इज़ हाई इन प्रोटीन, हाई इन फाइबर एंड थोड़ा बहुत फैट है बट नो कार्ब्स. एंड आई फेल्ट द मोस्ट प्रोडक्टिव. आई लॉस्ट द मोस्ट वेट. लाइक आई लॉस्ट 14 kgs इन द पास्ट 4 months ऑल बिकॉज ऑफ दिस टाइम. अब मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट आई ईट. सो जब आप खाओगे प्रोटीन, आपकी बॉडी रिलीज़ नहीं करेगी इंसुलिन. बिकॉज ऑफ दैट यू आर गोना स्टे फ्रेश. आपकी जो बॉडी की एक स्टेट है जिसके अंदर वो फैट को ब्रेक डाउन कर रही है टू जनरेट एनर्जी. बिकॉज जब आप कुछ खा नहीं रहे तो आपकी बॉडी ब्रेक्स डाउन एक्स्ट्रा फैट इनसाइड यू. तो उस फैट को वो यूज़ कर रही है. इट्स ब्रेकिंग इट डाउन, इट्स यूजिंग इट एज एन एनर्जी सोर्स. आप प्रोटीन ले रहे हो, प्रोटीन को नहीं छोड़ी, प्रोटीन आपके मसल्स में जा रहा है एंड आपका ब्रेन एंड एवरीथिंग, यू आर गोना फील फ्रेश एंड मोर स्ट्रॉगर बिकॉज नाउ यू एक्चुअली हैव ग़ज़ा दैट्स नेसेसरी फॉर यू टू कीप योर मसल्स एक्टिव, टू कीप योर बोन्स हेल्दी एंड एवरीथिंग. फैट खाया जा रहा है, मसल को भी ग़ज़ा मिल रही है, इंसुलिन रिलीज़ नहीं हो रही. सो यू आर गोना बी एक्सट्रीमली फ्रेश अगर आप प्रोटीन और फाइबर के खा लेते हो बहुत ज़्यादा. फैट थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आ जाता है, दैट्स फाइन, बट मेनली नो कार्ब्स. सो व्हाट आई डू, so my first, like as soon as I wake up,
the first thing that I do is that I don't eat anything, I just have coffee. आप ब्लैक कॉफ़ी पियो उठते साथ, एब्सोल्युटली नो शुगर, दैट्स कैन मेक यू एक्सट्रीमली शार्प. बट पहले 2 घंटे में नहीं पीनी, उठते साथ 2 घंटे में नहीं पीनी, बिकॉज उस टाइम एंड आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि मैं ज़्यादा उसको ओवर कॉम्प्लिकेट ना करूँ. बट व्हेन यू वेक अप, आपकी बॉडी के अंदर एक केमिकल होता है विच इज़ नोन एज एडेनोसिन. एडेनोसिन फ्लशेज आउट आफ्टर 1 से 2 घंटे में. इफ़ यू ड्रिंक एनी सॉर्ट ऑफ कैफीन, अगर आप उठते साथ चाय पीते हो, कुछ भी करते हो, तो आपकी बॉडी के जो एडेनोसिन के सेंसर्स होते हैं ना, जो उसको फ्लश आउट करते हैं, वो बंद हो जाते हैं कैफीन से. सो आपको वो एडेनोसिन बॉडी में रहती है. तो इफ़ इट समवन जो उठते साथ चाय पीता है, आपको 12-1 बजे दिन को सुस्ती होती होगी बहुत ज़्यादा. वो इसलिए होती है बिकॉज वो जब आप कैफ़ीन नहीं लेते हो ना 1-2 घंटे, तो कैफ़ीन का इफेक्ट ख़त्म होता है. फिर 12-1 बजे जाके वो जो एडेनोसिन है वो सेंसर उसके ऑन होते हैं एंड यू फील एक्सट्रीमली स्लो. देन योर बॉडी अगेन ट्राइज टू फ्लश इट आउट. लेकिन आप फिर चाय पी लेते हो बिकॉज यू थिंक कि चाय से आपकी सुस्ती दूर हो रही है, हालांकि वो फिर सेंसर्स को बंद कर रही होती है. सो पहले 2 घंटे में नहीं, लेट योर बॉडी फ्लश आउट द एडेनोसिन एंड देन उसके बाद 4 घंटे के लिए जस्ट पानी पियो. जिसकी ना भूख लगी बर्दाश्त करो, आपकी बॉडी फैट खा लेगी, मर नहीं जाओगे. 6 बजे आई जस्ट गेट बोटियाँ, टिक्का बोटी ले लो, मलाई बोटी भी ले सकते हो, बट इट्स जस्ट दैट कि उसकी एक फुल प्लेट, आई जस्ट गेट अ फुल प्लेट. देन आई हैव माई ग्रीक योगर्ट. ग्रीक योगर्ट का आपको मिल जाता है, अनार का वो मिल जाता है ग्रीक योगर्ट आपको, उसका पैकेट जो कंपनी अनार. आई जस्ट हैव दैट. उसके अंदर 22 ग्राम प्रोटीन होता है. बोटियों में आई एम नॉट श्योर कितना, बट इट्स रफली 30 to 40 grams ऑफ प्रोटीन. आई जस्ट ईट दैट एंड देन उसके साथ आई गॉट प्रोटीन बार्स. मैं एक बुक खा लेता हूँ, तो दैट्स लाइक 1000 कैलोरी मील एक साथ. आई जस्ट डू दैट. एंड देन उसके बाद रात के व्हेन आई एम अबाउट टू स्लीप, या फिर व्हेन इट्स लाइक व्हेन एवरीथिंग इंपॉर्टेंट इज डन, तो इस 6 घंटे के अंदर जो मैंने आपको फिल्टर दिया है, उस 6 घंटे के एंड में ना आई कैन हैव समथिंग स्वीट. आई कैन have like a small कोई पेस्ट्री ले लूँगा कोई छोटी मोटी. आई कैन हैव एनीथिंग आई वांट बट जस्ट इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, कि चलो मेरी वो कार्ब्स जो क्रेविंग है वो हो जाए. आई ऑल्सो हैव डाइट कोक लेइंग अराउंड एज वेल, बिकॉज डाइट कोक में या फिर डाइट पेप्सी में या फिर स्प्राइट जीरो में देयर इज 0 कैलोरीज. सो यू कैन लिटरली जस्ट ड्रिंक इट एंड आपकी वो स्वीट क्रेविंग दबा देता है एंड यू कैन जस्ट डाइट मोर बिकॉज उसमें लिटरली 0 कैलोरीज है एंड आपकी वो तलब भी बैठ जाती है. सो दैट्स वन. अच्छा, सो ये तो हो गया पूरा मेरे डाइट का स्ट्रक्चर एंड आई होप दिस मेड सेंस. इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस व्हाटसोएवर, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. आई विल ट्राई टू आंसर इट. एंड अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ. This is just what I've learned so far on my own, and this is what works for me perfectly, and this is how I stay extremely active. Now, lastly, very important thing, you have to take multivitamins every single day. So 1 pill of multivitamin per day. I personally take it every single day. It's life changing. आपके अंदर जो विटामिन डेफिशिएंसीज क्रिएट हुई होंगी और जो कि हुई होंगी अगर आप कोई भी देसी डाइट फॉलो कर रहे हो, ये उसको सप्लीमेंट करता है एंड यू फील मच बेटर. और आपके जो एक डेफिशिएंसीज हैं वो कम होती हैं. बिकॉज ऑफ दैट यू ऑटोमेटिकली फील ऑब्वियसली more energetic, more sharp, and coupled with the fact कि you are doing intermittent fasting, it just adds up and makes you feel like a superhuman. एक ये चीज़. एंड लास्टली, काउंट करो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है. जस्ट गो टू गूगल, सिंपली लिखो मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर एंड देन वहाँ पर जस्ट सिंपली इंसर्ट योर एज, इंसर्ट योर हाइट एंड इंसर्ट हाउ मच यू करेंटली वे एंड देन वो आपको बता देगा आपकी मेंटेनेंस कैलोरी क्या है. उस कैलोरी से ऊपर नहीं खाना, ठीक है. डोंट ईट ओवर योर मेंटेनेंस कैलोरी. आपकी मेंटेनेंस कैलोरी इज बेसिकली दी अमाउंट ऑफ एनर्जी योर बॉडी नीड्स टू फंक्शन प्रॉपर्ली एवरी सिंगल डे. अगर आप कुछ नहीं खाते हो तो आपकी बॉडी फैट तोड़ के आपकी मेंटेनेंस कैलोरी पूरी करती है कि आपको दिन में इतनी एनर्जी चाहिए कि आपका दिमाग चल रहा है, आपके सेंसर्स ऑन, आपकी आंखें चल रही, नाक चल रहा है, ब्रीदिंग कर रहे हो, हर चीज़ में लगती है एनर्जी. सो मेंटेनेंस कैलोरी आपको बताती है कि कितनी कैलोरीज चाहिए दिन में, जितना आपको उतना रहने के लिए, ना आप मोटे हो ना आप पतले हो, उतना खाओ. अगर वेट कम करना है तो मेंटेनेंस कैलोरी से 500 से 700 कैलोरी का वो करो, डेफिसिट कर लो, उससे कम खाओ तो वो बाकी 700 कैलोरी आपकी फैट से पूरा हो जाएगा. अगर वेट मेंटेन करना है तो जितना है उतना ही खाओ. अगर ज़्यादा करना है तो 500, 700 या 1000 का या फिर 2000 जितना खा सकते हो उसको ऊपर कर दो, आपका वेट बढ़ेगा. So that's how you lose weight even, but that's a different time. मैं उसमें अभी नहीं जा रहा. But this is the exact structure / diet that I personally use to stay focused for 14 hours a day and make over $10,000, if not equal to $10,000 every single month. And again, मैं numbers नहीं बताना चाहता, but it's just that you guys understand the fact that you need to optimize your body to a certain level. अब this is one aspect of it, ठीक है? This is one aspect. Diet is one aspect. The second aspect is mental. Okay, how can you really biohack your mind? How can you manage your dopamine? How can you manage your brain waves? How can you just essentially make sure that you crave doing hard things? उसके लिए I can make a proper video. Well, let me know in the comment section down below if you guys want that video. But that in itself is it's a process. कि how can you create, like you can literally train your mind कि वो उसका दिल करे कि मैं hard चीज़ें करूँ.
So I can make a video on that too. But for now, this is the exact stretcher that I personally use as my diet, and this keeps me very active. Try it out, and I would love to know what works for you. And if you guys want to learn more, if you guys want to be in a community of people jahan par there are other people who are driven, motivated, trying to make money online in your niche, so check out the link in the description. That's my community. I'll see you inside if you want to join. Sari details are on its landing page. Kyal rakho. I hope this helped. Allah Hafiz.